So okay student, in this video we will discuss about our next topic or the part 2 of the chapter natural resources. Okay, so here we will discuss about the natural gas. So what is natural gas? Fossil fuel is often found in association with the petroleum. ओके, सो नेचुरल गैस क्या है? ये भी एक फॉसिल फ्यूल है जो हमेशा हमें पेट्रोलियम के साथ मिलेंगी. ठीक है. सो इट मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन. इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है दैट इज़ अ मीथेन. ओके, और इसको हम मोस्टली यूज़ कहाँ पे करते हैं? मोस्टली इन द इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ फ्यूचर फ्यूल. वाई इट इज़ नॉन एज फ्यूचर फ्यूल? बिकॉज इट इज़ अ वेरी क्लीन फ्यूल and it is used for running the vehicles. Okay, because it is a pollution free gas, because it doesn't cause any type of the pollution. Okay, so the network of pipeline exists in the Vadodara in some part of the Delhi. Okay, so in these cities natural gas is to be available. Okay, so it is used for the manufacturing of number of chemicals and fertilizer also. Okay, and it is used in the production of ammonia also, and it is a raw material for the nitrogen containing the fertilizers. Okay, clear? So this is all about the natural gas. Okay, second we have energy requirement, because all of you know as the population is to be rising, okay, as the growth of the city is to be going on, then the requirement of energy has also been increased. Okay, so the tractors, tube wells, they have become the backbone of the modern agriculture. So all these vehicles, they require energy for running. Okay, and that energy is used for doing the various types of the works. Okay, so energy is a very important source because we use it in our daily life, in the domestic work also, in the industrial work also. Okay, so like so here you can see the consumption of the energy in our daily life in the different world or in the India also. Okay, so in the first diagram you have to see. So in the first diagram you will see that in the total world population, okay, so the fossil fuels that used by the industries, that is a 40%. Okay, by transport it is used by 25%. In domestic work 30% of fossil fuel is used, and in farming 5% of the fossil fuels are to be used. Okay, so this is the energy consumption or the consumption of the fossil fuel in the world. Okay, and here is the utilization of the energy fossil fuel by India. So in India 49% of the fossil fuels are used by the industries. Okay, 5% by farms, 22% by vehicles, 14% by other resources like by vehicles or by some other running machines also, and 10% is to be used in the human work, in the home or the domestic purposes. Okay, so this is the utilization of the fossil fuels in the India. Okay, मतलब इंडिया में कितने कितने परसेंट फॉसिल फ्यूल्स का कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है. ठीक है, डेली हमारा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंजम्पशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स. सो देखो, मोर देन 75% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी रिक्वायरमेंट आर यूज्ड बाय द फॉसिल फ्यूल्स. मोस्ट ऑफ द 75% से भी ज़्यादा एनर्जी है जो हमें फॉसिल फ्यूल से वो मिल रही है. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम्स ऑफ द ओवर यूटिलाइजेशन, कि अब अगर हम इन रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे, मतलब यूज़ से ज़्यादा यूज़ इसका कर रहेंगे, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, ये जो कोल है, ये सभी क्या है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं. इनको अगर आप एक बार एग्जॉस्ट कर लोगे तो इनको दोबारा रीन्यू नहीं कर सकते. ठीक है, सो इनका जो यूटिलाइजेशन है, इनका जो यूज़ है, वो हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट तक करना चाहिए. मतलब जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए. ठीक है राजे, तो वो अब हम रीयूटिलाइजेशन हम उसका पढ़ेंगे कि किस किस टाइप से हम उसका रीयूटिलाइजेशन है वो कर सकते हैं. ठीक है, सो देखो राजे, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास the rate of utilization that depend on the industrialization and growth of the development, it is much faster than the rate of their formation. इसका मतलब क्या है कि उनकी फॉर्मेशन में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उनकी कंजम्पशन में, उनके यूज़ में उतना टाइम नहीं लगता है. मतलब उनका यूज़ बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन उनकी जो फॉर्मेशन है उनको बनने में थोड़ा टाइम लगता है. ठीक है, इसलिए हमें इन फॉसिल फ्यूल जैसे रिसोर्सेज को बहुत कम यूज़ करना चाहिए.
ठीक है राजे। सेकंड है ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड दे डू नॉट इक्वल रिजर्व फ्यूल, कि सभी कंट्रीज़ के पास इक्वल टाइम से इक्वल अमाउंट के अंदर फ्यूल प्रेजेंट नहीं है। सो कुछ कंट्री के पास कोई फ्यूल प्रेजेंट है, किसी और कंट्री के पास किसी और टाइप्स का फ्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। तो सभी कंट्रीज़ क्या करती हैं, एक दूसरे से फ्यूल की एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती रहती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया इज़ रिच इन द कोल रिजर्व बट डजेंट हैव ए सफिशेंट अमाउंट ऑफ द पेट्रोलियम। इंडिया के पास कोल रिजर्व तो सफिशेंट अमाउंट में है, मतलब इंडिया के अंदर इतना कोल है कि वो अपने इंडिया कंट्री के अंदर उसको यूटिलाइज़ कर सकता है, लेकिन जो पेट्रोलियम की अमाउंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो पेट्रोलियम दूसरी कंट्री से क्या करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। ओके। सेकेंड है अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स पेट्रोलियम दैट रिजर्व आर स्टेटेड इन द मिडल ईस्ट एरिया। सो मोस्टली पेट्रोलियम हमें किन कंट्रीज से मिलता है, जैसे हमारे पास सऊदी अरब है, कुवैत है, ईरान है, इराक है। सो इन कंट्री से हमें जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रीज़ लाइक द USA, कनाडा, साइबेरिया, चाइना, रशिया। सो ये भी क्या है, लार्ज ऑयल रिजर्व है, तो इनसे हमें ऑयल रिजर्व्स जो ज़्यादा अमाउंट में इन कंट्रीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास द एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल प्ल्यूट एयर वाटर, कि जब हम इसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं, इसकी यूटिलाइजेशन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर पोल्यूशन क्रिएट होता है, जिसके कारण हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है, अगर हम इनका कॉन्टीन्यूड अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं तो। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास natural resources are limited. Okay, as we have already discussed, these are very limited in amount. Okay, so that's we use it in a very less quantity, or only that amount is to be used that is needed by us. Okay, we have not to use the extra amount of the these fossil fuels. ओके, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करना चाहिए, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए हमें इनका, ठीक है। नेक्स्ट है जुडिशियस यूज़ ऑफ द एनर्जी, कि अगर हमने बोला है कि हमें उनका लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना चाहिए, तो वो जुडिशियस यूज़ किस किस टाइप में हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे देखो, वी मस्ट नॉट ओनली यूज़ द अवेलेबल रिसोर्सेज विद अटमोस्ट केयर बट मस्ट ऑल्सो नॉट वेस्ट दैम, ठीक है। अगर हमें उसका प्रॉपर अमाउंट में यूज़ तो करना ही चाहिए, साथ में साथ उसका जो वेस्ट मटेरियल है या फिर उसका जो उसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ज़रूरत करो, बाकी को वेस्ट मत करो, ठीक है। सो इस टाइप से हम किसी भी एनर्जी रिसोर्स का जुडिशियस यूज़, जो उसका पर्पसफुल यूज़ है, वो कर सकते हैं। ओके, और लास्ट पॉइंट हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मीनिंग क्या होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम डेली लाइफ में किस टाइप से कर सकते हैं, हम एनर्जी को द्वारा रीयूज़ किस टाइप से कर सकते हैं। सो देखो जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, so that should be used in homes, schools, hospitals, should be switched off when not in use, means always use the save electricity. Okay, second point, use solar cooker, solar heater, other appliances running on the solar energy, that should be encouraged, मीन्स जो अप्लाइंसेस सोलर एनर्जी के, सन लाइट एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हमें उनका यूज़ ज़्यादा अमाउंट में करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी पानी से बन रही है, और पानी भी हम क्या कह रहे हैं कि वो एक मतलब कुछ टाइम के बाद ख़त्म होने वाला रिसोर्स है, तो उसका यूटिलाइजेशन भी थोड़ा कम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वेन एवर पॉसिबल विंड पावर शुड बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पानी से तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ही रहे हैं, अगर वो कहते हो सकता है तो हमें विंड से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट शुड बी जनरेटेड, मतलब फ्रॉम द वाटर बॉडीज़ विद द हेल्प ऑफ डैम्स एंड जनरेटर दैट शुड बी यूज्ड। ओके, टाइडल एनर्जी शुड बी यूज्ड, टाइडल एनर्जी टाइड से मिलती हैं ओशन और सीज़ के अंदर। सो जब लॉन्ग टाइड्स आती हैं, सो टाइड्स बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई स्पीड के साथ जब टरबाइन के ऊपर जाके गिरती हैं, तो टरबाइन मूव करती है, टरबाइन आगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी शुड बी जनरेटेड फ्रॉम द बायोमास, मतलब बायो एनर्जी, जैसे विलेजेस के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर वो कहते हैं हमें बायोमास एनर्जी का भी यूटिलाइज़ करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट, पेट्रोल डीजल शुड बी सेव्ड व्हाइल ड्राइविंग बाय प्रॉपर मेंटेनिंग द व्हीकल्स, यूजिंग द करेक्ट टाइप ऑफ टायर्स, स्विचिंग ऑफ द इंजन व्हाइल वेटिंग एट द रेड लाइट, ड्राइविंग एट द मॉडरेट एंड द कॉन्स्टेंट स्पीड। So okay, so all these things we should done to save the our energy resources.
Okay, so this is all about our conservation of energy. So now we have our last point of this chapter, that is about the conservation. So the recycling of the paper means how we can recycle the paper, how we can use the paper again and again. Okay, so as all of you know, the word paper is derived from the papyrus plant that grows wild along with the Nile river in the Egypt about 4000 years ago. ठीक है, वहाँ से हमें जो पेपर का जो वर्ड मिला था 4000 years ago. Okay, next है, you must know use different kinds of the paper, white or colored paper, smooth or rough paper, shining or the matte paper. Okay, do you know how paper is made or what is the material used in the paper making? Okay, so paper is mainly made from the cellulose fiber. Okay, so which is main constituent of the wood pulp. ठीक है, जो हमारी वुड है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है और उसी सेलुलोज से मिलके हमारा जो पेपर बनता है, क्योंकि हमें पता है कि पेपर को वुड से बनाया जाता है. ठीक है, सो पल्प क्या होता है? इट इज़ ए सॉफ्ट स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द ट्री. Trees are harvested to make the paper in the tree farms. Second source of material for making paper, that is a recycled fiber. Okay, so more and paper is recycled every year by using its cellulose fibers second, third and fourth time. तो बार बार वही पेपर को रिसाइकल करके उसको यूज़ किया जाता है. Okay, so this recycling of the paper is a process of recovering waste paper and remarking or remaking it into new paper product. जैसे घरों में हम न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं तो न्यूज़पेपर हम उसको रीड करने के बाद उसको क्या कर देते हैं, हम बाहर सेल कर देते हैं. ठीक है, तो वही न्यूज़पेपर दोबारा फिर रिसाइकल होकर एक न्यू न्यूज़पेपर की फॉर्म करके दोबारा फिर हम तक वही पहुंच जाता है. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर. ओके, सो पेपर रिसाइकलिंग सेव्स द ट्री एंड मिनिमाइज द पोल्यूशन. पेपर रिसाइकलिंग से एक तो ट्री सेव होंगे, क्योंकि पेपर ट्री से बनता है, उसके लिए ट्री कट करने पड़ेंगे. अगर हम वही पेपर दोबारा यूज़ करेंगे तो हमें कम ट्रीज़ है वो कट करने पड़ेंगे. ठीक है, it also help to reduce the problem of waste by utilizing the waste material like the used paper, cotton rags and unwanted biomass. Okay, so next we have steps in recycling the paper have been summarized like that. First is sorting process. What is sorting process? So paper is first sorted and many plastic, metallics or other contaminant are removed from it. सबसे पहले इसकी सॉर्टिंग की जाती है, मतलब उसके ऊपर जो भी कुछ लिखा होता है या कोई और मटेरियल इसके अंदर ऐड किया जाता है, सबसे पहले इसको रिमूव किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है मेकिंग पल्प. Sorted paper is then sent to pulper where it is heated with the warm water and chemical. फिर इसको क्या किया जाता है? पल्प किया जाता है वार्म वाटर के साथ. ठीक है, और कुछ उसके अंदर केमिकल ऐड किए जाते हैं. वो क्या करते हैं? पेपर को बहुत ही छोटे छोटे पीसेस के अंदर ब्रेकआउट कर देते हैं. ओके, और उसमें से जो सेलुलोज प्रेजेंट होता है वो भी उसमें से थोड़ा अलग हो जाता है. ठीक है, फिर क्या करते हैं? इसकी फ़िल्टरिंग. अब जो छोटे छोटे पीसेस के अंदर वो पेपर ब्रेक हो गया, फिर उसकी क्या करते हैं? उसके अंदर जो हमने केमिकल ऐड किए थे उसको मिक्स करने के बाद उसकी फ़िल्टरिंग करते हैं. ठीक है, सो फ़िल्टरिंग करने के बाद उसके अंदर क्या ऐड करते हैं? काओलिनिक केमिकल होता है, एडिटिव है. एडिटिव क्या होता है? जो सारे जो हमने पीसेस किए थे पेपर के उसको ज्वाइन करने में हेल्प करेगा, उसको एडिटिव बोलते हैं. ठीक है, नाउ पल्प इज़ देन filtered through the membrane of the sieves to remove the impurities such as the coating or contaminant. Sometimes pulp is de-anchored to remove the printing ink from it. ठीक है, तो इसमें से पल्प और ऐड किया जाता है. वो क्या करता है? इसके अंदर जो इंक प्रेजेंट होती है उसको भी रिमूव कर देता है, ताकि जो पेपर है वो हमारा बिल्कुल प्लेन बन जाए और उसके ऊपर हम किसी और इंक के साथ ही कोई और चीज़ है वो उसके ऊपर प्रिंट कर सकें. ठीक है, लास्ट में करते हैं उसकी रोलिंग एंड ड्राइंग. रोलिंग में क्या करते हैं? पल्प नाउ फ्री फ्रॉम एनी कंटामिनेंट इज मिक्सड विद द वुड फाइबर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द वर्जिन फाइबर टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्मूथनेस. Okay, it is then passed through the wire screens where water is drained out and sheet of paper start forming. उसके बाद वो शीट्स ऑफ पेपर उसकी, क्योंकि वो एडिटिव ऐड करने से वो सारे ज्वाइन होंगे और उसकी शीट्स बननी स्टार्ट होगी, तो वो शीट्स ऑफ पेपर बननी स्टार्ट हो जाएंगी. फिर उनको रोल किया जाता है, ड्राई किया जाता है. ठीक है, प्रेस किया जाता है और स्मूथ किया जाता है. फिर उस जाके कहीं पे हमारा जो पेपर की फॉर्मेशन है वो एंड में हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द recycling of the paper. And the last point, that is the recycling leads to the waste reduction. कि रिसाइकलिंग करने से हम वेस्ट को रिड्यूस किस टाइप से कर सकते हैं. ठीक है, सो देखो, इस लीड्स टू लेस वेट, इट्स डिस्पोजल प्रॉब्लम, एनर्जी सेविंग ऑन फ्रेश पेपर प्रोडक्शन एंड लेस वाटर एंड लेस एयर पोल्यूशन दैट शुड बी यूज्ड.
Clear? So this is all about our recycling of the leads to the waste production. Okay, and so this is the an activity टू मेक अ रिसाइकल्ड हैंडमेड पेपर. तो हम घर पे भी इसको बना सकते हैं, लेकिन घर पे आपके पास सिर्फ स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है. तो स्कूल में हम लैब में इसको बना के दिखाएंगे आपको. इसमें आपको क्या करना है, कोई भी न्यूज़पेपर लेना है, न्यूज़पेपर के छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, ठीक है. पीसेस को एक ट्रे के अंदर रख देना है, ठीक है. ट्रे के अंदर फिर इसके अंदर हमने क्या डालने हैं, tear the paper into small pieces and soak them into a tub containing of water and starch for 6 to 8 hours. Okay, now take the content out of the water and grind them into the soft. फिर इसको अच्छे से ग्राउंड कर लेना है, ठीक है, ग्राइंडर के साथ. now sieve the pulp so that water drains out and transfer the pulp on the trays. okay, leaves the trays for a few hours till the pulp layer dries out completely. मतलब उसको सूखने के लिए थोड़े दिनों के लिए रख देना है. नाउ रिमूव इट केयरफुली विद द ट्रेस. फिर उसको ट्रे से केयरफुली हम रिमूव करेंगे तो उसकी जो एक लेयर है पेपर की वो फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है. नाउ योर हैंडमेड पेपर इज़ टू बी रेडी. ओके, सो दिस इज़ एन एक्टिविटी टू मेक द आर्टिफिशियल पेपर. okay, so this is all about your chapter. So last we have some fill up or MCQs or the match the calling. So after watching the whole video you have to solve all these objective type questions by their own. okay, so now your chapter has almost completed. Thank you so much for watching my video.